سعودی عرب کے خلاف زہریلا بیان ناقابل معافی جرم ہے۔ وزیر اعظم نے بشرا بی بی کا بیان پاکستان دشمن قرار دیا، کہا جو ہاتھ پاک سعودیہ تعلقات میں رکاوٹ بنے گا قوم اس ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے توڑے گی۔ پاکستان کے مفادات سے کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بشرا بی بی کے بیان پر پی ٹی آئی قیادت میں تشویش۔ پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں نے بشرا بی بی کے بیان کو ذاتی بیان قرار دیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کا سیاست میں عمل دخل نہیں، بیان کو پارٹی پالیسی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بشرا بی بی کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیے جانے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پی ٹی آئی احتجاج سے نمٹنے کی تیاریاں۔ اسلام آباد پولیس نے شہر کے تمام اہم داخلی راستے بند کرنا شروع کر دیے۔ ایران ایونیو مارگلا روڈ کے اطراف کنٹینرز لگا دیے گئے۔ موٹر وے M4 باہو انٹرچینج سے بند، مسافروں کو پریشانی کا سامنا۔ عمر ایوب کہتے ہیں حکومتی رکاوٹیں ہٹانے کا مکمل بندوبست کر لیا ہے، ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے۔ 9 مئی کیس کے پہلے 10 ملزموں کو انسداد دہشت گردی عدالت نے سزائیں سنا دی۔ 3 ملزمان کا تعلق اسلام آباد، 2 کا باجوڑ، 1 کا راولپنڈی سے ہے۔ 4 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ سزا پانے والوں میں 4 افغان شہری بھی شامل جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقیم تھے۔ افغان شہریوں کو 6 سال تک قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور بانی پی ٹی آئی کی ایک کال سے حکومت کے آسان خطا ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں وفاق اور پنجاب حکومت نے بوکھلاہٹ میں موٹر وے شاہراہیں بند کر دیں۔ حکومت ملک بند کر کے عوام کو تکلیف نہ دے، احتجاج پرامن ہوگا۔ گھریلو خاتون جن کا سیاست سے تعلق نہیں، انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا۔ ایسے دوست ملک پر حملہ کیا جس نے ہمیشہ ساتھ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نام لیے بغیر بشرا بی بی پر تنقید، کہا میں نہیں مان سکتی کہ ان خاتون کو اس کے نتائج کا اندازہ نہیں تھا۔ ملک ترقی کے راستے پر آئے تو یہ کیوں دھرنا لے کر آ جاتے ہیں؟ یہ حملے خارجی یا دہشت گرد نہیں، خیبر پختونخوا حکومت کر رہی ہے۔ ان کا ایجنڈا بہت خطرناک ہے جو ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے۔ وزیر اعظم سے کہا خیبر پختونخوا حکومت کے لوگوں نے پنجاب پولیس کے سر پھاڑے، ان کی طرف سے پنجاب پولیس پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں۔ میں نے سختی سے پنجاب پولیس کو منع کیا کہ پختونخوا کے عوام ہمارے بھائی ہیں، گولی نہ چلے۔ خدا نخواستہ پنجاب پولیس گولی چلا دیتی تو کیا ہوتا؟ ان کے تمام ایجنڈے، مذموم مقاصد ناکام ہوں گے اور پاکستان ترقی کرے گا۔ آپ کو کسی ملک یا سازش نے نہیں، پارلیمنٹ نے نکالا۔ قمر جاوید باجوہ نے بشرا بی بی کے بیان کی تردید کر دی، کہا بانی پی ٹی آئی کے سعودی عرب سے واپسی پر فون کالز نہیں آئیں۔ ABI نیوز سے غیر رسمی گفتگو میں کہا بشرا بی بی غلط کہہ رہی ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں بشرا بی بی نے سعودی عرب یا محمد بن سلمان کا نام نہیں لیا۔ محمد بن سلمان اور بانی پی ٹی آئی کے مثالی تعلقات ہیں۔ جعلی حکومت بانی پی ٹی آئی اور محمد بن سلمان کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بغض میں دونوں ملکوں کے تعلقات بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ بشرا بی بی کے بیان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا مقصد احتجاج سے توجہ ہٹانا بھی ہے۔ بشرا بی بی نے گزشتہ روز کہا تھا بانی پی ٹی آئی جب مدینہ ننگے پاؤں گئے اور واپس آئے تو باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئی۔ کہا گیا کہ یہ تم کیا اٹھا لائے ہو، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تب سے ہمارے خلاف گن ڈالنا شروع کر دیا گیا۔ بانی کو یہودی ایجنٹ کہا جانے لگا۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، گرفتار کر کے 26 نومبر کو پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے بشرا بی بی کے ضامن کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کو پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا بشرا بی بی 8 سماعتوں سے مسلسل غیر حاضر ہیں، جان بوجھ کر کیس کو طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کا ہے، جبکہ اس کی تصدیق اسلام آباد سے ہوئی ہے۔ اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی کے مچلکے منظور کر لیے، رہائی کی روبکار جاری۔ دشمن عناصر کے مذموم عزائم کو ناکام بنانا اولین ترجیح ہے،
फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर अमन दुश्मनों का खात्मा करेगी। पाक फौज इदारों के साथ मिलकर देरपा अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर्स भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा सूबाई एपेक्स कमेटी के आइंदा इजलास की तैयारी के लिए है। जनरल आसिम मुनीर का शुहदा और गाजियों को भरपूर खिराज तहसीन। कहा, मादर वतन के दिफा के लिए ऐसी कुर्बानियाँ कौमी इस्तिकामत की बुनियाद हैं। आर्मी चीफ ने कहा, कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए जवानों के बुलंद हौसले और अमली तैयारी को सराहा। दहशतगर्द नेटवर्क और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल के खात्मे के आज़म का आदा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक। अवारान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द नियाज उर्फ घुम्मन, जरीफ उर्फ शाहजहान हलाक हुए। 2 दहशतगर्द डेरा बुगटी और केच में मारे गए। ISPR के मुताबिक बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज हलाक, 2 जख्मी। हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है, मारे गए खवारिज दहशतगर्दी की वारदातों, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिना खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। लोअर कुरम में मुसाफिर बसों पर फायरिंग से जाम बहक अफराद की तादाद 45 हो गई। 37 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। कुरम वाक़े पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पेशावर, बन्नू, कोहाट, पारा चनार में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस का मुतालबा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी मुजाहिरे। सजावल, ठट्ठा, नौशहर फिरोज, शहदाद कोट समेत सिंध के भी कई शहरों में एहतजाज। शुरका का दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा। अमरीका, ईरान और रूस की कुरम में दहशतगर्दी की मजम्मत। PTI एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत के कड़े इक़दाम। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी बंद रहेगी। पेशावर और लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवेज बंद। एलामिया के मुताबिक मुरम्मती काम के लिए मोटरवे 6 मकामात पर ताहुक्म सानी बंद रहेगी। इस्लामाबाद में तमाम हॉस्टल्स भी बंद करा दिए गए। तलबा परेशान। रावलपिंडी इंतजामिया का कल सुबह 8 बजे से तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस खाली करने का हुक्म। लाहौर में बंद रोड पर वाक़े तमाम बस अड्डे बंद कर दिए गए। PTI एहतजाज रोकने के लिए 30,000 इजाफी नफरी इस्लामाबाद पहुंच गई। सिंध से 5,000, आज़ाद कश्मीर से 1,000 अहलकार शामिल। FC के 5,000 अहलकार भी दारुल हुकूमत पहुंच गए। पंजाब में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर 100% अमल होगा। जलसा जुलूस की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं और ना होने चाहिए। आज खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफ जनाजे उठे तो दूसरी तरफ धावा बोलने की तैयारी हो रही थी। अली अमीन गंडापुर का कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता जरूर है, इसीलिए रिहाई के बाद बुशरा बीबी को पेशावर भेजा गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, PTI में नंद भावच की लड़ाई चल रही है। बुशरा बीबी पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं। हम बानी PTI से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहे। PTI और फैज़ हमीद में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। फैज़ हमीद के बगैर बानी PTI की सियासी पैदाइश नहीं हो सकती थी। PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात बुध की शाम से डेडलॉक का शिकार। ज़राए के मुताबिक डेडलॉक की वजह तल्खी और नाकाबिल कबूल मुतालबात हैं। डेडलॉक ख़त्म करने की कोशिशें जारी। मुज़ाकरात में नाकामी पर PTI की क़यादत को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। PTI क़यादत को हिरासत में लिया जा सकता है। मुज़ाकरात में नाकामी पर मुज़ाहिरीन को पुलिस कमांडोज का सामना करना पड़ेगा। बानी PTI ने कहा है, 24 तारीख को एहतजाज का ऐलान वापस नहीं ले रहा। कोई गुमराह करे तो तवज्जो ना दें। पुरअमन रहकर इस्लामाबाद पहुंचे। अलीमा खानम कहती हैं, हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलने का वक्त आ गया। 24 तारीख पर कोई समझौता नहीं होगा।
सब इस्लामाबाद आकर पुरअमन एहतजाज में शामिल हुए। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, अली मोहम्मद खान, लतीफ कोसा, सलमान अकरम राजा, फिरदौस शमीम नकवी की अडयाला जेल आमद। बानी से मुलाकात न हो सकी। लाख का तारीखी हिंसा पहले कौन अबूर करेगा? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन में दौड़ लग गई। PSX 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट से जायद इजाफा। स्टॉक मार्केट 98,000 पॉइंट्स पर पहुंच गई। डोनाल्ड ट्रंप से फ्रेंडली पॉलिसी की उम्मीदों पर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बड़ी हलचल। एक बिटकॉइन $99,000 का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तौंसा बैराज पर कच्ची कैनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, कच्ची कैनाल की बहाली से मुतासरा इलाके को दोबारा जिंदगी मिलेगी। कच्ची कैनाल की बहाली वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ाती काविशों का नतीजा है। मरियम नवाज बोली, वज़ीर आज़म चारों सूबों को साथ लेकर चल रहे हैं। मंसूबा शहबाज स्पीड से मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने तकरीब से खिताब में कहा, मरकजी हुकूमत के साथ पंजाब हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। पंजाब हमारे मुल्क का दिल है। सिंध हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें खाली करवाने की तैयारी शुरू कर दी। चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और एंटी इंक्रोचमेंट की मुआवनत हासिल करने का फैसला। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड के इजलास से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा, ज़मीनों से कब्जे के जल्द खात्मे को यकीनी बनाया जाए। जिन ज़मीनों पर सरकारी इदारों के दफातर हैं उनको नोटिस जारी किए जाएं। PP और MKM ने कराची को तबाह कर दिया। कल फिर हमने लफ्ज सिस्टम सुना। इनकी मिली भगत से शहरी अजियत का शिकार है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में धांधली बरकरार रखी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हर जमात को एहतजाज का हक है। PTI को उस हक से महरूम क्यों किया जा रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा जेल इस्लाहात से मुताल्लिक़ पेशावर में मुशावरती इजलास। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का मुनसिफाना और मौसर निज़ाम इंसाफ की ज़रूरत पर जोर। इजलास में कैदियों की फलाह बहबूद के लिए जेल इस्लाहाती कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दी गई। चीफ जस्टिस का खैबर पख्तूनख्वा के लिए आयशा बानो की सरबराही में ज़ेली कमेटी बनाने का ऐलान। कमेटी मुख्तलिफ जराइम के कैदियों के हालात पर रिपोर्ट तैयार करेगी। मलाइशिया की फ़ज़ाइया के सरबराह का पहला दौरा पाकिस्तान। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रॉयल मलाइशियन एयरफोर्स के सरबराह की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। अस्करी ताउन, मुश्तरका तरबियत और सनती शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। एयर चीफ ने पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान मजबूत दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को उजागर किया। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल बाज न आया। गजा और लेबनान में वहशियाना बमबारी। लेबनान में 24 घंटे में 47 अफराद शहीद। गजा में इसराइली फोर्सेज ने नसीरात कैंप पर बमबारी की। 7 अफराद शहीद हुए। अल-मवासी में बेघर अफराद के खैमों पर बमबारी से वालिदा और बेटी शहीद हो गईं। देर अल बलाह में हमले में 2 फलस्तीनी शहीद हुए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइली वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के वारंट 124 ममालिक को भेज दिए। इटली, नेदरलैंड्स, कनाडा, फ्रांस, तुर्की का कहना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। सदर बाइडेन का कहना है नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी नाकाबिले कबूल है। इसराइल की हट धर्मी बरकरार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। अजहर अली को PCB यूथ डेवलपमेंट का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। साबिक कप्तान सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी हैं। उनकी जिम्मेदारियों में तौसीक की गई है। अजहर अली का कहना है पाकिस्तान क्रिकेट में अहम किरदार निभाने के लिए पुरजोश हों। हमारे 2 वर्ल्ड क्लास ओपनर्स टूर्नामेंट जितवाने वाले खिलाड़ी नहीं। हेड कोच और सिलेक्टर बनने से पहले आकिब जावेद का बयान। कहते थे बाबर और रिजवान तो पावर प्ले में भी बाउंड्री नहीं लगाते। ओहदा मिलने के बाद मौक़िफ़ बदल दिया। बोले बाबर और रिजवान की बहुत अहमियत है। स्ट्राइक रेट जरूरी है लेकिन जिम्मेदारी से खेलना भी जरूरी है। पहले भारत फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग फ्लॉप। पर्थ के विकेट बैटर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गई। पहले ही दिन 17 विकेटें गिर गईं। भारतीय सूरमा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 150 रन पर ढेर हो गए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। जोश हेजलवुड ने 4 बैटर्स को ठिकाने लगाया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने भी वही परफॉर्मेंस दोहराई। 59 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए।
दिन के इख्तिताम तक 7 विकेटों पर 67 रन बनाए। बुमराह की 4 विकेटें। चैंपियंस ट्रॉफी की कराची में सैर जारी, ट्रॉफी को निजी कॉलेज ले जाया गया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी के साथ इवेंट में शिरकत की। तलबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी को बल्दिया उज़्मा भी ले जाया गया। मेयर मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। और T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की अलहमरा हॉल लाहौर में इफ्तिताही तकरीब, तमाम टीमों को ढोल की थाप पर हॉल में पहुंचाया गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान की टीमों की इवेंट में शिरकत। तकरीब में ब्लाइंड क्रिकेट की दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। कल्चरल शो में तमाम सूबों की सकाफत को उजागर किया। और चिलगोजे, बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, इंजीर, सर्दियां शुरू होते ही कोयटा के ड्राई फ्रूट मार्केटों में रौनक बढ़ गई। दीगर सूबों से आने वाले मेहमान खुश्क मेवा खरीदे बगैर नहीं जाते। कीमतों में इजाफा भी ड्राई फ्रूट की अहमियत कम न कर सका।